good afternoon to everybody. Open page number 74 of your books. We are going to start with a new chapter, Silk Road. Okay. Now this is a kind of a travelogue. And what is a travelogue? Ma'am, travel. Write down your experiences while Traveling. Yes. So this is a travelogue and it's been written by Nick Middleton, who is also the narrator, author as well as narrator of the text. And it presents a very beautiful view of Mount Kailash. And he is going to do a kora. And what is a kora? It's a kind of Place. नो कोरा आप कहते हैं ना कि कई बार किसी चीज की कोई भगवान की मूर्ति है उसके आसपास आप परिक्रमा करते हो Circumambulation. यस दैट इज कोरा ठीक है सो एंड दिस chapter has been titled Silk Road. If you call it Silk Route, or you can also call it a trade route, which was a kind of a road or a route that connected Asia and China. Yes, Eastern China to Asia and Europe. Got it? Yes, ma'am. So India was also connected with it. So we are going to read it, and as we would read, you would come across various expressions, and you're going to tell me the meanings of those expressions, if you can make out from the context. Okay. So ducking back, maneuvers, billowed, swath, cane of rocks, career down, salt flats, and various other words and expressions, the meanings of which you have to infer from the context. So he says a flawless half moon. What do you understand by flawless? Without any perfect. A perfect. A perfect. Okay? Yes. Online students, you also have to respond. Half moon floated in, and now you know the various phases of the moon. Pata hai na aapko? Yes. So ye half moon था उस दिन. It floated in a perfect blue sky. On the morning we said our goodbyes. So when they started their journey towards Mount Kailash. Extended banks of cloud like long French loaves, glowed pink. French loaf, what is a loaf of bread? Loaf of bread. Before slicing it, the entire loaf. Okay, so the clouds look like that. ठीक है आपके पास ब्रेड आती है वो पीसेस में कटी हुई आती है जब उसको काटने से पहले जब बनती है वो the entire loaf. So the clouds look like that, and they glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush. So everything was pink. Or now that we were leaving Ravu is the name of a place. Lamo said she wanted to give me a farewell present. Now, we were leaving a place and the name of the place was Ravu. Lamo is the name of a lady there. Okay, Lamo said that she wanted to give me a farewell present. What's a farewell present? When you're bidding bye. Yes, online students? Bolo? When you're going somewhere and people give their best wishes to you, and they also, in order to make your journey pleasant or otherwise, so that they remember you, they give you a present. Okay? So she wanted to give me a farewell present, and one evening I told her through Daniel that I was heading towards Mount Kailash to complete the Kora. ठीक है मैंने किसके थ्रू बताया था उसको through Daniel that I was going towards Mount Kailash, and she had said that I ought to get some warmer clothes. ठीक है वहाँ बहुत ठंड हो गई, so she said that I needed warmer clothes. After ducking into her tent, ducking back. So what do you mean by this? Going. Hopping. छुप जाना, छुप गई, फिर बाहर नहीं आई, हाँ बताओ, मतलब अंदर गए वापस चले जाना. गई और बाहर आ गई, ठीक है? So here it means she suddenly lowered her head into that tent. She got something and came out, ठीक है? So after ducking back into her tent, she emerged carrying one of the long-sleeved sheepskin coats that all the men wore. ठीक है तो मेरे एक बहुत गर्म सा sheepskin coat वो ले आई. Seaton sized me. Seaton is his companion. He is his guide also. So you need to remember the names of all the characters here. Okay? So we have had the narrator. We have had Lamo. We have had Daniel. Okay? And now we have Seaton. Okay? So Seaton is the guide. अभी एक पहला एक paragraph है इसमें 4-5 characters आपके आ गए. So Seaton sized me up. What do you understand by sizing somebody up? Pumping or boosting their confidence. No, just looking at somebody very carefully. Journey through the Tibetan Himalayas. ठीक है?
एंड द नरेटर निक मिडल्टन, निक मिडल्टन ने लिखा है ना, ये वो ऑथर है और नरेटर भी वही है, जो स्टोरी नरेट कर रहा है वो भी निक मिडल्टन है, ठीक है. सो ही इज द नरेटर एज वेल एज द ऑथर. सो ही वाज हेडिंग टुवर्ड्स माउंट कैलाश. सो कहाँ से होके जाना था माउंट कैलाश? सिल्क रूट के थ्रू, ठीक है. सो and why did he want to go to Mount Kailash? To complete the Kora. So I will just show you. I was just wanting that more students should join in. I'll just show you this route. Students, online students, are you able to see this Yes, map? ma'am. ठीक है. तो ये जो आपको ये येलो बीच में दिख रही है ना लाइन, सारी ये येलो, ठीक है. ये जो येलो लाइन है नजर आ रही है आपको? Yes, ma'am. हाँ, this is basically that silk route. ये वो सिल्क रोड है that linked एशिया, चाइना एशिया टू यूरोप, ठीक है. And India was also a part of it, and various trading activities used to be carried out. Like I had already told you, it was trade of silk, trade of goods, trade of animals, etc. Through and also sharing of ideas between two great civilizations of that time. ठीक है. तो ये आपका सिल्क रोड है. अगर आपसे पूछा जाए कि टाइटल का नाम सिल्क रोड क्यों दिया गया, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? दिस चैप्टर हैज बीन As the narrator traveled through it. Yes, very good. So as the narrator traveled through this route, he traveled through this road, and because a portion of this route it passed through the path of the narrator's journey. और उसने जाना कहाँ था, कहाँ पहुँचना था? माउंट कैलाश, ठीक है. सो ही हैज नेम्ड दिस ट्रेवलॉग एज सिल्क रोड. तो मैंने आपको बता दिया ये ईस्टर्न चाइना को सेंट्रल एशिया और यूरोप से जोड़ता था ये रोड, ठीक है. तरफ देख के उसने क्या बोला? यस, ही डिक्लेयर्ड ड्रोकबा सर. ड्रोकबा का मतलब क्या होता है? शेफर्ड. क्योंकि उसने शीप स्किन, शेफर्ड कौन होते हैं? जो शीप को चराते हैं, ठीक है ना. तो जब मैंने शीप स्किन कोट पहना तो उसको मैं शेफर्ड के जैसे ही दिखा. उसने बोला कि तुम बिल्कुल शेफर्ड की तरह दिखाई दे. Have you followed? So in this first paragraph we have read about how many characters. One is the narrator, then we have Lamo, then we have Daniel, then we have Seaton, and the place from where they left, the name of the place is Rao. ठीक है. We took a shortcuts to get off the Shangtan. Seaton knew a route that would take us southwest almost directly towards Mount Kailash. उसको रूट पता था जो हमें डायरेक्टली कहाँ पे लेके जाएगा? माउंट. शॉर्टकट उसे पता था. It involved crossing several fairly high mountain passes, he said. But no problem, sir. If there is no snow. वो कहते हैं कि बहुत सारे माउंटेन पासेस आएंगे पर घबराओ नहीं आप, अगर स्नो ना हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और मैंने इससे पूछा व्हाट वाज द लाइकलीहुड ऑफ दैट. आई आस्क्ड कि क्या पॉसिबिलिटी है स्नो होने की, ठीक है. सो ही सेड नॉट नोइंग सर अंटिल वी गेट देयर. कहता जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचते आई कैन नॉट टेल, ठीक है. फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ रावू द शॉर्टकट took us across vast open plains with nothing in them except a few gazelles. ठीक है. जेंटली रोलिंग हिल्स का मतलब है जिनकी स्लोप बहुत माइल्ड थी. हिल होती है ना, एक तो बड़ी स्टीप स्लोप होती है ऐसे खड़ी चढ़ाई, ऐसे जाके, एक होती है जेंटल, ठीक है. मतलब आराम. वहां से हम कहाँ पहुंचे? शॉर्टकट हमें कहाँ ले गया? प्लेन्स में. उन प्लेन्स में क्या था? वी सॉ नथिंग एक्सेप्ट अ फ्यू गजेल्स. एंड व्हाट आर गजेल्स? अ काइंड ऑफ डियर, हिरन, ठीक है. सो दैट वुड लुक अप from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void. और वो डियर क्या कर रहे थे, हिरन क्या कर रहे थे? क्योंकि उनके लिए ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी कि कारें वहाँ से निकलती हैं. सो वेरी फ्यू पीपल, इट वॉज अ वेरी रेयर साइट, वेरी फ्यू पीपल वुड पास दैट पाथ. तो वो जैसे ही हम निकलते थे वो थोड़े घबरा जाते थे, वो हमें देखते थे ऐसे. सो दे वुड लुक अप फ्रॉम निबलिंग द एरिड पास्चर्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय निबलिंग, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? व्हाट इज निबलिंग? निबलिंग, nibbling the arid pastures. बोलो बच्चे. Excitingly Look, at the people. yes, they would look. They would be surprised looking at the people, but nibbling is not related to look. Nibbling is related to eating. So they would chew in small bites. Okay, they would take very small bites, chewing, biting. Okay, biting playfully. The arid pastures. Arid means dry. Dry pastures, grassy fields, and they would frown. और गुस्से से हमें देखते थे कि हमारे को डिस्टर्ब कर दिया इन्होंने आके.
So they would frown before bounding away into the void. What do you understand by bounding? Bounding, हिरन की मूवमेंट कैसी होती है? Jumping. ठीक है, jumping into the void, and void is empty space. ठीक है, हम एक दूसरे से देखकर वो भाग जाते थे. ठीक है. Further on, where the plains became more stony than grassy, a great herd of wild ass came into view. जब हम आगे गए तो रास्ता थोड़ा पथरीला हो गया. ठीक है, और हमारे सामने क्या आया? एक झुंड. हर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन. और किसका झुंड आया? वाइल्ड एस. व्हाट इज एस? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो. दिस इज donkey. Yes, donkeys. They told us we were approaching them long before they appeared. Now Seaton was used to that route. वो उस रूट पे आता जाता रहता था, तो उसने दूर से ही उनको देख लिया था. ठीक है, जब आप किसी पथरीले रास्ते पे, हिली पहाड़ों पे जाते हो, तो आपको तो जब वहाँ बिल्कुल पास पहुँच के पता चलेगा, मगर जो वहाँ पे रहते हैं उनको दूर से ही दिख जाता है. ठीक है, सो ही told us we were approaching them long before they appeared. कयांग, उसने पॉइंट करके बोला, वो देखो हिरन वहाँ पे. He said, not deer but ass, wild ass. He said, pointing towards a far off pall of dust. And what is pall of dust? आप देखो, जब हिरन भागते आ रहे हैं बहुत तेज और पूरा इकट्ठा झुंड भागता आ रहा है, तो पीछे वो क्या छोड़ते जा रहे हैं? मिट्टी. मिट्टी, मिट्टी का ट्रेल बनता जा रहा है. धूल. ठीक है, वो धूल, मिट्टी का ढेर, धूल उड़ती जा रही है. ठीक है, सो दैट इज पॉल ऑफ डस्ट. ओके. Wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course. ठीक है, तो बड़ी टाइट सी फॉर्मेशन थी उनकी, मतलब सारे इकट्ठे भाग रहे थे. ठीक है, एंड एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग सम मैनूवर्स. एंड व्हाट आर मैनूवर्स? मतलब कुछ कोई स्किल कर रहे हैं. जैसे आपने देखा होगा जब कभी कोई मतलब एयरक्राफ्ट के कभी वो आपने आसमान में देखा, वो कई बार मैनूवर्स करते हैं, ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे ऐसे फॉर्मेशन करते हैं, तो वो ऐसे लग रहा था कि ये भी कोई स्ट्रेटजी, कोई उनका कोई मैनूवर्स कर रहे हैं. ठीक है. प्लूम्स ऑफ डस्ट बिलोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर. और जैसे ही वो भाग रहे थे, आपको मैंने भी पहले भी बताया, बहुत सारी धूल उड़ रही थी. ठीक है. As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary drokbas. ड्रोकबा मैंने आपको पहले बताया. ड्रोकबा किसके लिए कहा गया है? अभी बताया था पहले. What do you understand by ड्रोकबा? शेफर्ड. यस. ठीक है, तो हमें वहाँ पे शेफर्ड्स नजर आए, टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, जो अपनी शीप को चरा रहे थे. ठीक है. समटाइम्स men, sometimes women. These well-wrapped figures would pause and they would stare at our car, occasionally waving as we passed. तो कभी मतलब बड़ी अच्छी तरह से वो अपने आप को उन्होंने कवर किया होता कि बहुत ठंड थी वहाँ पे. ठीक है. एंड व्हेन वी वुड पास, व्हेन आवर व्हीकल, व्हेन आवर कार वुड पास, देन दे वुड वेव एट अस. हमें बाय बाय करते थे, क्योंकि हम उनके लिए भी यहाँ से, उस जगह से कार का निकलना एक बहुत रेयर सी साइड थी. वो नॉर्मली कार्स वहाँ से निकला नहीं करती थी. तो जैसे आपने देखा है, छोटे बच्चे होते हैं, जब एरोप्लेन निकलता है वो एरोप्लेन को बाय करते हैं, उनको बड़ी एक्साइटिंग सी चीज़ लगती है. ऐसे उनके लिए ये कार निकलना भी बड़ी एक्साइटमेंट वाली बात है, तो वो बाय करते थे हमें. ठीक है. When the track took us close to their animals, और जब हम उनके बिल्कुल पास पहुंच जाते थे, the sheep would take evasive action. What is evasive action? मतलब अवॉइड करना किसी चीज़ को. क्यों? क्योंकि वो डर जाती थी शीप. And then they would veer away from the speeding vehicle. They would veer away mean they would change the direction. शीप अपनी डायरेक्शन चेंज करके दूसरी डायरेक्शन की तरफ चल पड़ती थी हमारे व्हीकल को देखकर. ठीक है. So we passed nomads' dark tents pitched in splendid isolation. What do you understand by nomads' dark tents? Nomads कौन होते हैं? Who are nomads? And those who move from one place to another. Yes, those who just keep In on search of moving something. from one place to another and they don't have permanent houses. ठीक है, जहाँ पर भी उनको लैंड फर्टाइल दिखता है और जहाँ पर भी उनको कंडीशन सूटेबल दिखती है, वो वहीं पर अपने टेंट लगा के उनमें रहना शुरू करते हैं. ठीक है. सो वी पास nomads' dark tents pitched in splendid isolation, usually with a huge black dog, a Tibetan mastiff, standing guard. और उनके टेंट्स के बाहर गार्ड कौन करता था? टिबेटन मैस्टिफ. एक ह्यूज फेरोशियस मॉन्स्ट्रस सा डॉग है. ठीक है, जिसका नाम है टिबेटन मैस्टिफ. ठीक है. These beasts would cock. ये बीस्ट, ये जानवर, बीस्ट किसको बोला गया है? टिबेटन मैस्टिफ को. They would cock their great big heads when they became aware of our approach and they would fix us in their sights. तो वो एकदम से अपना सिर ऐसे निकाल के और हमें एक टक घूरते रहते थे
कि भी उनकी प्रॉपर्टी के आसपास किसी ने आने की हिम्मत कैसे की, ठीक है। एज वी कंटिन्यू टू ड्रॉ क्लोजर दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, ठीक है। दे वुड नॉट जस्ट बार्क, दे वुड कम इनटू एक्शन। और एक्शन में कैसे, जैसे एक गोली की तरह, जैसे गोली गन से निकलती है उतनी तेज स्पीड से हमारी तरफ आते थे, ठीक है। दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन स्पीडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स अस लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन एंड नियरली एज फास्ट, ठीक है। दीज शैगी मॉन्स्टर्स, ये किसको बोला गया है, शैगी मॉन्स्टर्स, तिब्बतन मैस्टिफ्स को, ठीक है। शैगी क्यों, क्योंकि उनकी ना बड़ी थिक सी फर होती है, थिक से हेयर होते हैं और वो बड़े अनटाइडी से लगते हैं, ठीक है। दैट इज बाय शैगी। दीज शैगी मॉन्स्टर बोल रहा है उनको, मॉन्स्टर इतने ज्यादा बड़े ह्यूज डॉग्स थे कि मॉन्स्टर बोला। दे वर ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट, जो अंधेरी रात है, काली रात जिसमें नो मून नाइट होती है, जिसमें अमावस्या की रात होती है, उससे भी ज़्यादा काली उनके काले थे वो। दे यूजली वोर ब्राइट रेड कॉलर्स एंड दे बार्क फ्यूरियसली विद मैसिव जॉज। एक तो इतना काला रंग, ऊपर से रेड कलर के उनके ऊपर कॉलर डाले हुए थे, तो दूर से ही चमकते थे, ठीक है वो। एंड दे वुड बार्क फ्यूरियसली, बड़ी जोर से भौंकते थे वो, विद मैसिव, बड़े ह्यूज जॉज थे उनके, ठीक है। दे वर कंप्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल, शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, कॉजिंग सीटन टू ब्रेक एंड सवर्व, ठीक है। बिल्कुल हमारे व्हीकल से वो डरते नहीं थे, हम उनके पास बिल्कुल डरते नहीं थे वो कि भी हमारे से ये इनका कार ट्रक टकरा जाएगी हमें जो ना, ठीक है। एंड सीटन जो हमारा ड्राइवर था उसको एकदम से तेजी से ब्रेक लगानी पड़ती एंड ही वुड हैव टू सवर्व। सवर्व मीन्स चेंज डायरेक्शन सडनली, एकदम से उसको डायरेक्शन अपनी चेंज करनी, ठीक है। The dog would make chase for 100 meters or so before easing off, having seen us off the property. तो 100 मीटर तक वो हमारा पीछा करते थे जब तक उनको ये नहीं आश्वासन हो जाता था कि हमारी प्रॉपर्टी से दूर चले गए, ठीक है। जब उनको ये सेटिस्फेक्शन हो जाती थी कि अभी हमारी प्रॉपर्टी से दूर है तो फिर वो चले जाते, ठीक है। इट वॉजंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई फेरोशियस तिब्बतन मैस्टिफ्स बिकेम पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स। ये आपको क्वेश्चन है भी है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई वर दीज तिब्बतन मैस्टिफ, वाई डिड दे बिकम पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स। क्यों ये डॉग्स पॉपुलर हुए चाइना के रॉयल कोर्ट्स में, क्यों, बिकॉज एज हंटिंग डॉग्स। क्यों, क्योंकि इनकी ये इतने एजाइल हैं, इतने विजिलेंट हैं, इतने फिरोशियस हैं, तो इसलिए इनको किस फॉर्म में रखा जाता था, हंटिंग डॉग्स के फॉर्म में तिब्बतन मैस्टिफ्स को हंटिंग डॉग्स इधर रखा जाता था। एंड दे वर ब्रॉट अलोंग द सिल्क रोड इन एंशिएंट टाइम्स एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत। और तिब्बत की तरफ से ये गिफ्ट था चाइना के लिए, ठीक है। एंशिएंट टाइम्स में इसी सिल्क रूट से ये आए थे और चाइना के इंपीरियल रॉयल कोर्ट्स में इनको हंटिंग डॉग्स की तरह रखा जाता, ठीक है जी। आगे तो समझ। By now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice. River बहुत चौड़ी थी, खुली थी, but it was blocked with ice. सिर्फ आइस से भरी हुई थी। हम ऐसे वैली में पहुंचे। Brilliant white and glinting, बिल्कुल white थी रिवर आइस की वजह से। And it was shining. Glinting का मतलब क्या होता है, shining, चमक रही थी वो, white, snow white. Okay, in the sunshine. The trail hugged its bank. The trail hugged its bank, twisting with the meanders as we gradually gained height and the valley sides closed in. ठीक है, तो meander का मतलब क्या होता है, वो ट्रेल ऐसे जा रहा है टेढ़ा मेढ़ा। meandering means with twists and turns, ठीक है, twists और turns, ठीक है। The turns became sharper and the ride bumpier. और वो जो turns थे वो और sharp हो गए और ride कैसी होगी, bumpier. bumpier का मतलब क्या होता है, हाँ, ऊपर नीचे तो झटके लगते हैं, ठीक है, झटके लगते हैं, अनकंफर्टेबल सी राइड थी। एंड सीटन नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब। The track moved away from the icy river, laboring through steeper slopes that sported big rocks daubed with patches of bright orange lichen. अब क्या था वहां पर, स्लोप और स्टीप हो गए। मैंने आपको बताया ना, पहाड़ी जब स्टीप का मतलब है ऐसे बिल्कुल सीधी चढ़ाई, ठीक है। और वहां पे जो रॉक्स थे, रॉक्स दे वर डॉप्ड विद पैचेस, उनके ऊपर क्या स्प्रेड हुआ था, मॉस, लाइकन्स, ठीक है, वो स्प्रेड हुए हुए थे, वो चिपके हुए थे उनके ऊपर, ठीक है। Beneath the rocks, hunks of snow clung on in the near permanent shade. What do you mean by hunks? Hunks of snow का मतलब क्या है, large pieces of snow, ठीक है।
आई फेल्ट जब आपने कभी अपने पेरेंट्स के साथ कभी छुट्टियों में पहाड़ों में गए हो तो आपको लगता होगा जैसे जैसे आप हाइट पे चढ़ते हो आपके ना एटमोस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, आपके कानों में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है. सो आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, सो आई हेल्ड माई नोज, आई स्नॉटेड, तो मैंने अपने नोज को ऐसे किया ताकि मेरे कान खुल जाए. सो आई स्नॉटेड एंड आई क्लियर्ड देम. वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बेंड एंड सीटन स्टॉप्ड. ठीक है, एकदम से वो एक टाइट बेंड आया और सीटन एकदम रुक गया और उसने अपना दरवाजा खोला. वो ड्राइवर था, ड्राइवर सीट, उसने वहां दरवाजा खोला एंड ही जम्प्ड आउट और वो बाहर चला गया. बिफोर आई रियलाइज व्हाट वाज गोइंग ऑन, मुझे अभी समझ ही नहीं आया क्योंकि मैं तो पहली बार आ रहा था यहाँ पे. और उसने बोला स्नो. डेनियल जो हमारे साथ कंपेनियन था, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में डेनियल भी नाम पढ़ा था ना. स्नो सेड डेनियल एज ही टू एग्जिटेड द व्हीकल. एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना. So he also left the vehicle, letting in a breath of cold air as he did so. ठीक है. A swath of the white stuff lay across the track in front of us, stretching for maybe 15 meters. What do you understand by swath? एक बहुत ब्रॉड बड़ा सा एरिया हमारे सामने 15 मीटर तक क्या बिछ गया, जैसे स्नो. ठीक है. एंड 15 मीटर्स तक. बिफोर इट पीटर्ड आउट. पीटर्ड आउट का मतलब क्या है? बिफोर इट ग्रेजुअली डिक्रीज्ड. 15 मीटर तक पूरी स्नो थी, फिर वो कम होनी शुरू हो गई. ठीक है. एंड द डर्ट ट्रेल, और वो जो पहले वाली ट्रेल थी डर्ट ट्रेल वापस आ गई. द स्नो कॉन्टिन्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ अस, स्मूथिंग द अब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप साइड. द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर अवर व्हीकल टू स्केप. हम उस बैंक पे निकल नहीं सकते थे क्योंकि स्नो थी, स्लिपरी थी, आइस थी. ठीक है. So there was no way around the snow patch. I joined Daniel as Seaton stepped on the encrusted snow and began to slither and slide forward. Seaton ने क्या किया? बाहर निकला ना वो, उसने स्नो के ऊपर अपने पैर ऐसे मारने शुरू किए. ठीक है. And began to slither and slide forward. Slither का मतलब होता है sliding movement, smooth movement. ठीक है. Stamping his foot from time to time to ascertain how sturdy it was. बार बार वो अपना फुट स्नो पे मार के देख रहा था, आइस पे मार के, कि कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी हार्ड है ये स्नो. आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच, और रिस्ट वॉच पे उसने क्यों देखा? उसने क्या देखा? वी वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल. हम कितना ऊपर थे सी लेवल से? 5210 मीटर्स. द स्नो डिड नॉट लुक टू डीप टू मी, बट द डेंजर वॉजंट इट्स डेप्थ, Daniel said, so much as its icy top layer. स्नो इतनी ज़्यादा डीप नहीं थी, मगर उसकी डेप्थ का तो खतरा था ही नहीं. खतरा किसका था? उसकी टॉप लेयर का, जो कि बहुत स्लिपरी थी. ठीक है ना? समझ आ गई बात आपको? इफ वी स्लिप ऑफ द कार कुड टर्न ओवर. डेनियल ने बताया कि स्लिप हो गए तो गए. ठीक है. He, as we saw Seaton grab handfuls of dirt and fling them across the frozen surface. तो Seaton ने क्या किया? क्योंकि वो तो वहाँ से आता जाता रहता था, वो बड़ा एक्सपर्ट ड्राइवर था. वो जहाँ पे डर्ट ट्रेल थी ना, डर्ट थी जहाँ पे, वो उठा के सॉइल को उठा के किसके ऊपर फेंक रहा था? स्नो के ऊपर. ठीक है. ताकि उनका व्हीकल उसके ऊपर से निकल सके. ठीक है. सो वी बोथ पिच्ड इन मतलब हमने भी हेल्प करी उसकी, हमने भी यही किया. सॉइल उठाया, डर्ट उठाई और स्नो के ऊपर बिछाया, जो टॉप लेयर के ऊपर बिछाया. When the snow was spread with soil, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Seaton's load. अब वो व्हीकल निकलेगा तो सही, क्योंकि अब उसने सॉइल बिछा दिया उसके ऊपर, मगर उन दोनों के भार के साथ नहीं, तो वो दोनों बाहर. ठीक है. ताकि सीटन का लोड कार के ऊपर कम रहे. ठीक है. He backed up and drove towards the dirty snow. तो वो कहाँ से लेके गया? जहाँ पर उसने डर्ट बिछाई थी, जहाँ पे सॉइल बिछाया था. Eased the car onto its icy surface and slowly drove its length without apparent difficulty. वो इतना एक्सपर्ट ड्राइवर था कि इसके ऊपर से वो आराम से ले गया, without any difficulty. ठीक है. 10 minutes later फिर एक और प्रॉब्लम आ गई. अगले 10, अभी देखो पहले प्रॉब्लम क्या आई थी? फर्स्ट ब्लॉकेज क्या था? फर्स्ट ब्लॉकेज उनके लिए क्या था? 15 मीटर्स ऑफ स्नो, ड्रिफ्टेड स्नो. ठीक है. और फिर कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि वो ड्राइव कर पाएगा अराउंड दैट पैच ऑफ स्नो. तो उसने क्या किया? क्या किया उसने? हाँ, ही कवर्ड द स्नो विद सॉइल एंड ही ड्रोव. अब सेकंड ब्लॉकेज आ गई 10 मिनट के बाद. 10 minutes later we stopped at another blockage. Not good sir, Seaton announced as he jumped out again. तो सर फिर से बाहर आ गया देखने के लिए कि क्या हालात है. This time he decided to try and drive round the snow. उसने बोला, 12 से आइस आ गई, उसने बोला अब मैं स्नो के आसपास से निकलूंगा.
द स्लोप वॉज स्टीप एंड स्टडेड विद मेजर रॉक्स. स्लोप बहुत स्टीप थी, खड़ी चढ़ाई, ठीक है. एंड स्टडेड विद मेजर रॉक्स का मतलब क्या है, भरी हुई थी, पथरीला रास्ता था. बट समहाउ सीटन, फिर भी सीटन ने अपनी एक्सपर्ट ड्राइविंग से उसको नेगोशिएट किया. His four-wheel drive vehicle lurching from one obstacle to the next. What do you understand by this word lurching? एक obstacle से दूसरे obstacle तक उसकी कार, the car was lurching. What is lurching? Yes, lurching means जब आपका vehicle किसी uncontrolled हाँ imbalance हो जाता है और आप बड़े jerk की झटके से देता है, ठीक है, slippery था वहाँ पे, ठीक है. So in doing so he cut off one of the hairpin bends. और एक बड़ा अच्छा उसने मनूवर किया. hairpin bend क्या होता है बेटा? hairpin आपने देखा है जो आपकी मदर्स जूड़े पे जो पिन लगाती है, थोड़ा चौड़ा होता है ना, इट इज यू शेप पिन, वो हेयर पिन होता है, ठीक है, जूड़े पे लगाया जाता है जो हेयर पिन, ठीक है. तो वो हेयर पिन जैसे वो ऐसे यू शेप्ड है ना हेयर पिन, तो जो यहाँ वाला जहाँ पे आपका व्हीकल है तो आपको इधर दिखाई नहीं देगा, ठीक है, यू शेप्ड है ना, तो आपको यहाँ पे जाना है तो आपको बड़ा आराम से मतलब हिली एरिया में बड़े आराम से जाना है. सो ही नेगोशिएट, उसने बड़ी अच्छी तरह से कट ऑफ किया उसको. रिगेनिंग द ट्रेल फर्दर अप वेयर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड, और फिर से वो उसको क्रॉस करके आराम से ही ड्रोव देम टू सेफ्टी, ठीक है. I checked my watch again as we continued to climb in the bright sunshine. We crept past 5,400 meters and my head again began to throb horribly. What is throbbing of the head? फिर से उतना ऊंचाई पे पहुंच गए तो उसके सिर जोर जोर से धक 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 बजने लग गया. Pulsation of head, सिर दर्द होना शुरू हो गया उसको, ठीक है. I took gulps from my water bottle which is supposed to help a rapid ascent. मैंने आप लोग बताते हैं कि अगर आप ऐसे चढ़ाई चढ़ रहे हो तो आपको पानी पीते रहना चाहिए, ठीक है, पानी. सो ही ड्रैंक वाटर, ही टुक गल्प्स ऑफ वाटर, ठीक है, इसको अपने आप को थोड़ा ठीक फील करवाने के लिए. वी फाइनली रीच, बस ये एक पैराग्राफ कराऊंगी, इसके बाद अटेंडेंस लेती हूँ आपकी, ठीक है. वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5,515 मीटर्स. इट वॉज मार्क्ड बाय, जब हम इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए वहां पे हमने क्या देखा, लार्ज कैन ऑफ रॉक्स. कैन ऑफ रॉक्स का मतलब क्या है, व्हाट इज, बड़े बड़े पत्थर थे जो इकट्ठे पड़े थे, ठीक है. एंड वो किस लिए थे, ही उनका ढेर लगा हुआ था. एंड दे वर फेस्टून्ड. फेस्टून्ड का मतलब डेकोरेटेड, किससे सजाया गया था उनको, वाइट स्कार्फ्स एंड प्रेयर फ्लैग्स. वहाँ पे लोग पूजा करते थे, ठीक है, उसका भी परिक्रमा करते थे, ठीक है. सो वी ऑल टुक अ टर्न राउंड द कैन. हमने उसकी परिक्रमा की इन अ क्लॉकवाइज. कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज कैसे होती है, ऐसे, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने उसकी परिक्रमा की. एंड सीटन चेक द टायर्स. उसने कहा कि मैं अपने व्हीकल के टायर्स देख लूँ. विच इमिटेड, ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक एंड पार्शली अनस्क्रूड. उसने पेट्रोल टैंक को थोड़ा सा खोल दिया, ठीक है, और बड़ी तेज आवाज आई. विच इमिटेड अ लाउड हिस, ठीक है. क्यों खोला, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम था तो उसकी वजह से फ्यूल क्या हो जाएगा, अगर आप खोलोगे तो वो एक्सपैंड होगा, ठीक है. सो इट्स, मुझे लगा कि ये तो बड़ा डेंजरस है, ठीक है, मुझे लगा डेंजरस है, पर उसने बोला कि नहीं, इट इज नॉट डेंजरस बट नो स्मोकिंग है, ठीक है, यू नॉट टू स्मोक है. ही जस्ट लाफ्ड. ही वाज एन एक्सपर्ट ड्राइवर, ही न्यू इट कि क्या चीज़ डेंजरस है, क्या खतरनाक है, क्या नहीं, ठीक है. सो माई हेडेक सून क्लियर्ड एज वी करियर डाउन दी अदर. जब हम नीचे आए तो मेरा थोड़ा सिर दर्द अपने आप ऑटोमेटिकली कम होगी, नेचुरली कम होगी. सो यू कैन जस्ट पुट द मार्क हेयर. वी कंटिन्यू फ्रॉम हेयर टुमारो. इट वॉज 2 o'clock से मैं कल आपको करवाऊंगी. So I'll take your attendance and please go through the part that we have covered and also the rest of the part.